gathered on this stage, it is a momentous occasion to celebrate your accomplishment and the lasting impact you have made on our institution. Your journey from students to professionals and community leader is an inspiration to us all. There is no doubt that today is a momentous day for the Nirmalites. It is simply because we are witnessing magnanimous spectacle of the convergence of two significant occasions, Children's Day and Alumni Day. It is a unique and beautiful blend of the innocence and promise of the future represented by our children, though they are not present here as they are on Diwali holidays, and the wisdom and nostalgia embodied by our esteemed alumni. आज बाल दिवस के उपलक्ष्य यहाँ उपस्थित समस्त भूतपूर्व बालक बालिकाओं को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम आपस में बीते कई वर्ष के उपरांत मिलन समारोह की आयोजित कर रहे हैं। तो सभी को अपने विद्यालय के ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ आप सभी का संस्था की सुवर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित एलुमनाई मीट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। Respected Father Anthony, manager of our school, Sister Simi, vice principal, Sister Philby, KG in charge, respected former teachers, dear staff, and today's center of attraction, dear alumni. Good afternoon to all. Alumni Day brings back the familiar faces that once walked the same hallways, sat in the same classrooms, and shared the same dreams that our current students do. The return of our alumni is a testament to the lasting impact of the seeds that were sown during their times here in Nirmala. They have grown into individuals who have made their mark in various fields, carrying the values instilled in them during their formative years. As we journey through life, we often find ourselves moving between the innocence of childhood and the wisdom gained through experience. The union of Alumni Day is a powerful symbol of this cycle of life, emphasizing the importance of learning, growing, and passing on the torch of the knowledge and inspiration. To our esteemed alumni, thank you for gracing us with your presence once again in the campus of Nirmala. Your success stories are beacons of inspiration, guiding the way for those who follow in your footsteps. Your presence here in Nirmala is a reaffirmation of how much you love this school and the teachers who taught you. It gives us great hope that the seeds we plant today will indeed blossom into greatness tomorrow. At this moment, I would like to say to you loudly, we all love you and we are all proud of you. Yes, indeed, we all love you and the school is proud of you. Let your successful life continue to inspire many children. Let us celebrate together the beauty of this moment where the past and future merge. May the innocence of childhood and the wisdom of experience inspire us all to create a world that is filled with hope, compassion, and boundless possibilities. आज विद्यालय जिस मुकाम पर पहुंचा है वो बिना आपके सहयोग के संभव नहीं था। आप इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो सफल व्यवसायी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो शासकीय सेवा में हैं, बहुत से ऐसे हैं जो शिक्षक हैं तथा बहुत से ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस भी ऊंचाई पर हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि आज
जब आप अपने पुराने विद्यालय में आए हैं तो निश्चित ही आप अपने आप को बच्चों की तरह महसूस कर रहे होंगे। विद्यालय में प्रवेश करते ही आपकी सारी पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही होंगी, जो आपने अपने बचपन में यहाँ विदाई होगी। संस्था के पूर्व छात्रों ने शिक्षा एवं अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यालय का नाम नगर एवं जिला में जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था, उस परंपरा को आज के विद्यार्थियों ने भी कायम रखा है। विगत वर्ष संस्था के छात्र सुजल तारण ने कॉमर्स संकाय में जिला में प्रथम स्थान प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी विद्यालय की प्रसिद्धि न केवल अपने प्रशासन और शिक्षण कर्मचारियों पर निर्भर करती है, बल्कि इसके छात्रों की उपलब्धियों और विकास पर भी निर्भर करती है। हमें बेहद गर्व है कि आप हमारी संस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे दिल में हमेशा आपके लिए एक खास जगह बनी रहेगी। Once again, I welcome everyone who positively responded to our invitation to come back to Nirmala once again. May the good God continue to bless you and let your lives be filled with love, joy and peace. Thank you. आदरणीय फादर एंटोनी, आदरणीय शिक्षिका प्राचार्य सिस्टर एंजेलिन, मेरे प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं और सभी पूर्व छात्र और छात्राएं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुझे यहाँ पर स्मृतियों के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया गया है, तो मैं प्रारंभ में ही उन सबको याद करना चाहता हूँ जो हमें असमय छोड़कर चले गए। मैं उन सब का नाम, जिन जिन का मुझे स्मृति में आया, उन सब का नाम लेना चाहता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि 1 मिनट के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। वो कहीं नहीं होंगे, वहीं यहीं आसपास हमारे बीच ही होंगे और हमें सुन रहे होंगे कि हम उनको आज याद कर रहे हैं। आप सभी 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। आत्मा ना मरती है, ना जन्मती है, ना नष्ट होती है, वह तो शाश्वत और अमर है। मुझे पता है कहीं ना कहीं आप भी हमें सुन रहे होंगे। प्रभु आपकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। सभी विराजमान हो जाए। हम याद करते हैं योगेश जी वशिष्ठ जी को। रेणु शर्मा देवपुर के मेले में जाकर कुंड में उनका मरण हो गया था। भाई धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी एक्सीडेंट में चले गए थे, दोनों भाई। अभिषेक जी पिछली साल हमें छोड़कर चले गए। गौरव भार्गव, जूजर भाई, खिजर बेग जी, विकास मंगल जी, प्रवीण शर्मा जी, रूही, तरन्नुम, प्रवेश, समीक्षा दुबे, संगम शुक्ला, उत्कर्ष रघुवंशी। भगवान आपकी सबकी आत्मा में शांति प्रदान करे और जहाँ भी हो हम आपको याद करते हैं। भगवान आपको आगे अच्छा स्थान प्राप्त कराए। 1973 में 5 कमरों में लगने वाला विद्यालय 50 वर्षों बाद 50 कमरों में लगने लगा। ये कार्य किसी धर्म के कार्यकर्ता का नहीं था। ये विद्यालय बनाना, चिकित्सालय बनाना, रोड बनाना हमारे द्वारा निर्वाचित शासन का कार्य था। इनके फेल हो जाने पर ऐसे धार्मिक लोग आगे आते हैं। मैं उन सब तमाम लोगों का सलाम करता हूं जो हमारे नौनिहालों के सपनों के लिए अपने सपने कुर्बान करके इतना सुंदर परिसर तैयार करते हैं। बिल्डिंग माध्यम हो सकती है, लेकिन इसमें जीव का परिरक्षण होता है। 2 हथेली अध्यापकों की रहती है, शिक्षिकाओं की रहती है, जो इनके अंदर दीप प्रज्वलन का कार्य करती है। मैनेजमेंट, अच्छी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब, लेबोरेटरी, रोबोटिक्स लैब्स, वीडियो क्लासेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारे प्लेग्राउंड तैयार कर सकता है। पर बच्चे के अंदर युद्धोत्साह पैदा करना, अभिलाषा पैदा करना, इच्छा पैदा करना कि मैं अच्छा हिंदी पढ़कर महादेवी वर्मा बन जाऊं, मैं अच्छा संगीत पढ़कर उदित नारायण बन जाऊं, अच्छा क्रिकेटर बनकर विराट कोहली जैसे शतक बनाऊं, ये शिक्षकों का दायित्व है। हम सब अपने अपने शिक्षकों के, अध्यापकों के सवारे हुए लोग हैं। यदि मैं अच्छा मैथ्स पढ़ा सकता हूं तो इसका कारण मेरे शिक्षक है। यदि मैं अच्छी कविता पढ़ सकता हूं तो ये मेरे अच्छे शिक्षकों का कमाल है। और मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया तो इसका कारण भी मेरे अध्यापक है। आपके समय से आज के समय में बदलाव आया है। बच्चे को आज गुरु से ज्यादा गूगल पर भरोसा है। पर आज भी कई मध्यम वर्गीय परिवारों में शिक्षक की भूमिका घर के बड़े लोगों से ज्यादा है। बच्चा जब विद्यालय आता है तो सिर्फ वह एक कैनवास है, ना उसके अंदर घृणा है,
ना उसके अंदर नफरत है, ना घमंड, ना अविश्वास, ना भेद कि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, तुम जैन हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो। ना अमीरी की, ना गरीबी की, ना जातिगत किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। भाई कैनवास कहता है आओ मुझ पर पेंटिंग करो। हिंदी की टीचर आती है, स्ट्रोक मारकर चली जाती है। मैथ्स के, साइंस के, स्पोर्ट्स के टीचर आते हैं, ब्रश चलाकर चले जाते हैं। बाद में भाई पेंटिंग यदि कुरूप है, विद्युत मिलती है, और भाई पेंटिंग यदि 17 वर्ष बाद नशे में घूमती हुई कहती है इट्स माई लाइफ, तो दोस्त हम शिक्षकों का होता है। यदि वो पेंटिंग दुनिया में ओलंपियाड जीतने के बाद भारत की तरफ से तिरंगा लहराती है तो उसका पुरस्कार भी हम शिक्षकों को ही जाता है, उसका पारितोष भी हम शिक्षकों को ही जाता है। आप जिस क्षेत्र में परचम लहराए रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वह भी पारितोष उन सभी शिक्षकों का है जो यहाँ पर मौजूद है। कई हैं, कई शेष हैं, कई विशेष थे जो नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुख में इतने मत डूब जाना कि बच्चे को 17,000 का मोबाइल दिलाकर हमें यह भी पता ना हो भाई क्या देख रहा है, अच्छा देख रहा है, बुरा देख रहा है, अच्छा सुन रहा है, बुरा सुन रहा है, मस्तिष्क में उसके क्या जा रहा है। मोबाइल में हम फिल्टर नहीं लगा सकते, पर हम फिल्टर लगा सकते हैं तो विवेक का संस्कार होगा, जिससे कि बच्चे के अंदर विवेक पैदा हो जाए, मुझे क्या उसके अंदर देखना चाहिए और छनकर भाई उस बच्चे के मस्तिष्क में जाए। भारत क्या है? क्या भारत ताजमहल है? क्या भारत लाल किला है? अरे क्या भारत नया संसद भवन बना हुआ है? वह है। भारत में खुद हूं, मैं 1/140 करोड़वा हिस्सा हूं, 1/140 करोड़वा हिस्सा हूं। मैं अच्छा शिक्षक बन जाऊं, आप अच्छे व्यापारी बन जाएं, या आप अच्छे अधिकारी बन गए, आप अच्छे समाज सेवी बन गए, तो समझ लो मैंने अपने हिस्से का हिंदुस्तान बनाना शुरू कर दिया, और हिंदुस्तान बन जाएगा, शुरू होना हो जाएगा। हम किसी की प्रतीक्षा क्यों करें? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। कब? जब हमारे स्कूल के विद्यालय की बेटी या बेटा दुनिया में कहीं भी अपनी पहचान बना रहा हो, IAS हो, बड़ी बड़ी पदों पर हो, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में कार्य कर रहा हो, MBBS हो, बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, गूगल में 1st, 2nd, 3rd रैंक पर हो, और हमें पहचान कर आकर हमें अभिवादन करके कहे कि सर मैं आपके स्कूल से पढ़कर निकला हूं या निकली हूं, तो मुझ प्राइवेट टीचर को, मुझ प्राइवेट शिक्षक को दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न, पद्मश्री भी छोटे लगने लगते हैं। उसकी तरक्की को देखो। यह आत्मविश्वास शिक्षण में आ जाए, यह आत्मविश्वास शिक्षक में आ जाए, और बच्चे में विनम्र भाव आ जाए, तो शिक्षा से प्राप्त विद्या सार्थक हो जाए। इथिकल वैल्यू, मॉरल वैल्यू सब विद्या से प्राप्त होते हैं, और हम और ज्यादा भाग्यशाली हैं। और ये सब शिक्षक शिक्षिकाएं पुराने बैठे हुए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम 45 के हो जाएं, 50 को पार कर जाएं, 60 के हो जाएं, परंतु बचपन हमारे सामने ही रहता है। आप सब खुद जब पेरेंट्स बन गए हैं और विद्यालय में जब आए थे, नन्हे छात्र बनकर आए थे, आज पूर्व छात्र बनकर आए थे, आज भी छात्र हो, कल भी छात्र हो, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कई परिस्थिति घर की होती है, परिवार की होती है, इकोनॉमिकल होती है, सोशल होती है, उनमें हमें असफलता मिलती है। उनके लिए भी, उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ 2 पंक्तियां। होके मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। और स्मृतियों को शेष बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दादा श्री राहुल जी शर्मा को। आए हमारे पूर्व छात्र रोहित जी, दादा रोहित आइए। मैं अपना परिचय थोड़ा विस्तार से देना चाहूँगा। दादा तो मेरा एक उर्फियत का नाम है, जो दादा के नाम से मशहूर हूँ। मैं कोई दादा नहीं हूँ, हालांकि बहरहाल मोहब्बत से दादा कहते हैं, मोहब्बत से लोग दादा कहते हैं। तो मैं रोहिताश शर्मा मेरा नाम है, और मैं इस स्कूल का 2nd बैच का छात्र रहा हूँ, और मैं इन दिनों मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ, श्रवण पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष हूँ, मैं होमबैक भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, और मैं समाज सेवा में भी लिप्त हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे जो सीनियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको मुनव्वर भाई हमारे, उनको सलाम पेश करना चाहूँगा। वो मेरा सलाम स्वीकार करें, क्योंकि हम यहाँ के प्राइमरी मेंबर रहे हैं। हम जिस समय इस स्कूल में हमने एडमिशन लिया था, उस स्कूल में ना तो इतना रौनक थी, ना बिल्डिंग थी, ना कोई प्लेग्राउंड था, सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाएं थे जो हमारे पेरेंट्स को पसंद आए। शिक्षक शिक्षिकाएं भी वो जो घर घर जाकर, जिन्होंने जब इसकी स्थापना की तो घर घर जाकर लोगों से अपील की कि आप आइए, हमारा मिशनरी का स्कूल खुल रहा है, यहाँ आप एडमिशन लीजिए, अपने बच्चों को एडमिशन दिलाइए। तो बहुत कम लोगों ने, मेरे बैच में 14 स्टूडेंट्स थे, 40। तो उस समय स्कूल मुनव्वर भाई की बिल्डिंग में लगा करता था, बाकी ट्रांसपोर्ट आई थिंक है ना, तो
वहाँ की ट्रांसपोर्ट वाली बिल्डिंग में जो तालाब पर है। उसके बाद एक सामने एक पुरानी आजकल नगर पालिका बन गई है, वहाँ 1-2 कमरे थे, तो उनमें स्कूल का संचालन जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन पढ़ाई की दृष्टिकोण से और शिक्षकों के दृष्टिकोण से हमारे पेरेंट्स ने और जो भी शहर के प्रबुद्ध लोग थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री वी नारायण शर्मा जी, श्री किशन भार्गव जी और भी यहाँ के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कॉन्वेंट की स्थापना में बेहद सहयोग दिया। हालांकि उस समय ये माना जाता था कि मिशनरी आए हैं, ईसाई लोग हैं, क्या मालूम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स ने उन पर भरोसा किया और हमें यह शिक्षा दिलवाई, और हम यही उसका ही परिणाम है कि आज हम जो भी कुछ हैं, हम हमारे सिस्टर, हमारे फादर और तत्कालीन जो हमारा स्टाफ रहा था उसके हम शुक्रगुजार हैं, और उनका आशीर्वाद हमें तरह यहाँ से नहीं ऊपर से प्राप्त होता है, हमें ऐसा लगता है। मैं इस अवसर पर सिस्टर एवलालिया जो हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी, फादर जॉन पॉल, सिस्टर ज्योति, इस तरह की कई शिक्षिकाएँ थी, श्रीमती लज्जरी भार्गव ने भी हमें संस्कृत और हिंदी पढ़ाई है, तो उनको मैं याद करता हूँ, उन्हें मैं नमन करता हूँ। उस दौर में ये हुआ करता था कि हम जब बीमार हो जाते थे, टू सर्व विथ लव, यही मोटो है गवर्नमेंट, टू सर्व विथ लव। तो उसका एक परिणाम, उसका एक मिसाल बताता हूँ मैं आपको कि हम बीमार हो गए, 1-2 दिन स्कूल नहीं आए, तो फादर सिस्टर को पता लग जाता था कि बच्चा बीमार है, तो वो खुद उसके घर जाके हालचाल उसका जानते थे, उसको वाकई जो उनको फल फ्रूट वगैरह जो भी मोहब्बत से वो दे के आते थे, उसको आराम करने की सलाह देते थे। फिर यहाँ पर उसको जो उसका उस समय का जो होमवर्क वगैरह जो स्टडीज रह जाती थी, वो अलग से उसकी पढ़ाई करवाई जाती थी। छड़ी बड़ी मशहूर थी, मनोहर भाई आप जानते होंगे, केरल से आती थी टेन की, उसका बड़ा खौफ रहा था, बड़ा खौफ था। अच्छा, सिस्टर फादर क्या करते थे कि बच्चे करें ही ना, इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही न पड़े, तो बच्चों के सामने एक बड़ी बाल्टी में उसको गला देते, एक बंडल, बच्चे देखते रहें, वो सुधर जाए खुद ही। वरना साहब उसका स्वाद भी बड़ा नमकीन था, अत्यंत जो है नमकीन प्रवृत्ति का था, और नील जो है कम से कम 8 दिन तक रहता था। लेकिन ऐसा नहीं कि मार ही रहे हैं, लव टू सर्व विथ लव, उसी मोहब्बत से उस पर तेल भी लगाया जाता था, RDX भी लगाते थे। तो ऐसी मोहब्बतें हमने यहाँ पाई हैं। हमें सिस्टर और फादर आज भी ऐसे लगते हैं कि हमारे वही शिक्षक हैं, ये वही हमारे गुरु हैं, इनके चरणों में हम प्रणाम करने का मन होता है। और हमारे यहाँ के भी जो लोकल के भी जो शिक्षक थे, उन्हें भी हमारे चरणों में श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती लज्जरी भार्गव जो थी, वो भी उनने भी हमें संस्कृत पढ़ाई है, आजकल वो स्वर्गीय हो गई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उनके जो लड़के हैं वो विधायक हैं विदिशा से। तो ऐसे संस्मरण हमारे रहे। हमारा जो अनुभव है, हमारी जो बुनियाद है, जो हमारी जो इंग्लिश है, जिसकी वजह से, क्योंकि आजकल बच्चे इंग्लिश की वजह से पीछे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है वो इंग्लिश है। आप कोई सी भी भाषा पढ़ते हो, आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन आपको जब इंटरनेशनल मंच पे जाएंगे आपको तो इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, जो यहाँ पर आपको मजबूती से प्रदान की जाएगी। आपकी रोम रोम में इंग्लिश बसा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश या हिंदी उर्दू संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, जितनी आवश्यकता होगी आपको सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल डिमांड की चीज़ इंग्लिश है, वो जहाँ आपको हर जगह इस्तेमाल में आएगी, वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। और मैं उन शिक्षकों को जो स्वर्गीय हो गए, हमारे सिस्टर फादर अभी बता रही थी वो हमारी बेटी कि वो फादर जॉन पॉल का स्वर्गवास हो गया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके स्वर्ग की कामना करता हूँ, उनके आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मुझसे जो त्रुटि हुई हो वो क्षमा करें, और जो आपको अगर मेरे उसमें आनंद आया हो तो ताली बजाएं। फादर प्रिंसिपल सिस्टर अक्षा सर, आशा टीचर, मृदुला टीचर, मुनव्वर भाईजान, और मेरे और भी सीनियर थे, शहनाज हैं, अफसाना है, ममतेश हैं, आप लोगों को यहाँ पर आए बहुत बहुत बधाई। अब आज जिन्होंने बगैर तैयारी के इस वक्त यहाँ आने के बाद बोल दिया कि आपको भी कुछ बोलना है, तो मैं आ गया हूँ। अब रोहित भाई साहब ने जो अपनी याददाश्त के हिसाब से चीज़ें बताई, उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताऊँगा
कि वो जो स्टिक का सबसे पहले चर्चा वहीं से शुरू करता हूँ कि हम भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं कि हमने भी बहुत स्टिक्स खाई हैं और ऐसे खाई हैं कि फादर थॉमस को याद करते हुए कि 8th या 9th का वाकया है। किसी बात पे एक दिन उनसे थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई टाई को बांधने के लिए, तो उन्होंने कहा टाई बांधो। हमने टाई बांध ली, क्लास में आए फिर खोल के रख दी। फादर राउंड पे आए, उन्होंने कहा टाई नहीं है, बाहर निकाल के 2 टाई बांधो। उन्होंने टाई बांधवा दी। हम फिर जाके बैठ गए, हमने फिर टाई बांध दी। फादर फिर आए राउंड पे, टाई नहीं है, फिर बाहर आए, फिर 2 स्टिक्स पड़ी, टाई बांध लो। हमने बांध। हालत ये हुई कि उस वक्त हमने फादर से 2-2 स्टिक्स करके 3 मरतबा 6 स्टिक्स खाए। तो ये तो स्टिक्स का वो था, लेकिन उन स्टिक्स को याद करके मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि उसमें कितनी मोहब्बत छुपी हुई थी। और इसी तरीके से सिस्टर जोसलीन, सिस्टर विंसी, ओसिया सिस्टर, फादर थॉमस, ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन सब ने मुझे पढ़ाया है। जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया है, जो उनकी प्यार मोहब्बत थी, उसको मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर। शायद इस चीज़ को मेरे बहुत सारे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, शहनाज बैठी भी हैं, ये मेरी काफ़ी सीनियर हैं, ये ममतेश बैठी हैं, ये बैठी हैं, इस चीज़ को तो ये लोग भी समझती हैं। और यहाँ बच्चे, अब मैं स्टिक से हट के थोड़ा सा दूसरी तरफ चलता हूँ कि यहाँ जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे ज़माने में शहनाज जो बैठी हुई हैं, ये क्यों हुआ करती थी उस ज़माने की कल्चरल एक्टिविटीज़ की। मतलब आधा स्कूल का कोई फंक्शन होता था तो लोग तो ये कि ये थी, एक इनकी एक और बहन है, वो है ममतेश है, अफसाना है, मतलब वो पुरानी थी नई पे। उसके बाद वाली लाइन पे ये जो बैठी हुई है, ये लोग भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। हाँ, मैंने ज़रूर कभी कोई कल्चरल प्रोग्राम में ऐसे अटेंड नहीं किया है। हाँ, मैंने आज जिस तरीके से खड़ा कर दिया, मैं बोलने के लिए ज़रूर आ जाता था स्पीचेस वगैरह के लिए मुझे बुला लिया जाता था। और मेरे साथ मेरे सीनियर्स मुनव्वर भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मेरे साथ के अब्दुल्ला हैं, और अब्दुल्ला, विनीत, राजे, शशिकेश, जय नारायण, और हमारे संदीप भाई भी आ गए, ये मेरे सीनियर हैं। मनीष कहाँ गए? बहुत पीछे। अच्छा मनीष, अच्छा बहुत सारे पीछे आके बैठ गए मेरे सीनियर, जिनको मैं तो आगे बैठा हुआ था, मैं देख नहीं पाया आप लोग कब आए। तो इसी तरीके से ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती रही हैं। स्पोर्ट्स में भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी खिलाए। कश्यप सर थे, वो हमें खिलाने के लिए ले जाया करते थे बाहर। उस वक्त शायद मुझे ऐसा याद है कि हम लोग फुटबॉल के अंदर शुरू के अंदर हमारे ही बैच से शुरुआत हुई थी, जब हम लोग बाहर जाते थे और थॉमस फादर ने हम लोगों को भेजना शुरू किया था। तो ये सब है, इसी तरीके से चलते हुए आज यहाँ पर इस मुकाम पे पहुँच गए हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा।